سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ حسن۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 News HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس سے متعلق بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں۔ میڈیا ایسی باتیں بھی بتا رہا ہے جن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ درخواست ہے اجلاس کے خاتمے کے بعد پارٹی کی میڈیا بریفنگ کا انتظار کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ میڈیا ایسی باتیں کر رہا ہے جن کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ درخواست ہے اجلاس کے خاتمے کے بعد پارٹی کی میڈیا بریفنگ کا انتظار کریں۔ اجلاس کے ختم ہونے کے بعد ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے تمام فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام مرکزی رہنما موجود ہیں اور کئی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ مولانا محمد خان شیرانی نے علیحدہ گروپ بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ ہم کبھی JUI یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ اور خیانت قابل قبول نہیں، اپنے کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ مرکزی مجلس عمومی سے ایک قرارداد پاس کیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ان دونوں قسم کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام کا جاری کیا جائے، جو ہمارے دستور کے دفعہ نمبر 1 کے مطابق کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیانت اور صداقت سے خالی ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے جھوٹوں کی پیروی نہ کرو۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو تنہا کیا جائے، یعنی نہ کوئی سدھے اور نہ کوئی مخاصمت کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں PDM میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ فضل الرحمان کے ہاں صف ماتم بچ چکی ہے، وہ نہیں چاہتے یہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں۔ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اتحاد کی ہوا نکال دی ہے۔ نواز شریف کی فروری میں پاسپورٹ کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے 24 نیوز کے نمائندے اویس کیانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ہمارے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب موجود ہیں۔ جو بدلتی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے تو ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اب کیا نواز شریف واقعی واپس آ کر PDM کو لیڈ کریں گے؟ پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن آج پیپلز پارٹی نے ان کے صف ماتم بچھا دی ہے یہ فیصلہ کر کے کہ وہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور لانگ مارچ کا فیصلہ بھی ابھی انہوں نے نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں آج PDMA میں دراڑ پڑ گئی ہے اور صف ماتم ہوگی فضل الرحمان کے ہاں یہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں یا الیکشن میں حصہ لیں، وہ تو کہتے ہیں بس جوڑو کراٹے ہوں۔ وہ آج میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اتحاد کے ہوا نکال دی۔ اور سر کیا کہتے ہیں، ویسے ان کا ایک مطالبہ آیا ہے، نواز شریف کو کیا اس پہ سوچنا چاہیے؟ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کا فیصلہ آ جائے، پتہ لگ جائے کہ صحیح انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں بطور انٹیریئر منسٹر ابھی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور ان کا پاسپورٹ بھی اگلے مہینے فروری میں 26 کے 16 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں اور اس کا نوٹس لینے کی دو ایک بہت اہم چیزیں جو کہ آج ڈسکس ہو رہی ہیں، ایک تو نیب اور FBI کا معاملہ بھی آج کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ بہت جو ہے تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کو آپ کوئی تنقید نہیں ہوئی، یونانی مسئلہ وہاں اس وقت کسی نے تنقید نہیں کی، ایز اٹ از وہ منظور ہو گیا۔ اور سر مفتی کفایت اللہ کے حوالے سے مفتی کفایت اللہ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے، وہ لاہور میں درج ہوگا، اور انہوں نے جو عظیم اور ہماری جو پاکستان کی جو قوت ہے اور پاکستان کی جو شہادتوں کی داستان ہے فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کی وہ قبول نہیں ہے۔ کسی نے بھی کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور اپنا راستہ اختیار۔ اور کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا؟ کیونکہ اب بہت سی دیکھیں جو بھی آدمی غیر اخلاقی، غیر پارلیمانی اور غیر ذمہ دارانہ بات کرے گا
कानून हरकत में आएगा। कानून हरकत में आएगा और पीडीएम को जो है एक बड़ा धचका लगा है, शेख रशीद साहब का ये कहना है, और आगे चल के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ये पेशन गोई कर रहे हैं। लेकिन अब वाकई जो इनके मुताबिक कि पीडीएम जो है आगे तहरीक जो है वो आगे उसका क्या मुस्तकबिल होगा इसको भी देख रहे हैं। लेकिन कफ़ायतुल्लाह के हवाले से बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उन पर जो है आज जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची में तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर बरहम हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तजावुजात रिपोर्ट जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दी थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कराची में तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कारकर्दगी न दिखाने पर चीफ जस्टिस ने मुताल्लिका अफसरान पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस गुलजार ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपको तैयारी करके आना चाहिए था। अब आप पर चार्ज फ्रेम करके आपको सुन लेते हैं, अब आपको जेल भेज देंगे। आपको पता ही नहीं कराची के मसाइल क्या हैं। अदालत के तलब करने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि इनके हमरा सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह अदालत पहुँचे। चीफ जस्टिस ने मुराद अली शाह से मुकालमा किया कि हम जमीनी हकाइक देख रहे हैं। वजीर आला साहब क्या तब्दील हुआ? वजीर आला सिंध को रिपोर्ट के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। कराची एयरपोर्ट कार्गो गेट के करीब मोटरसाइकिल में बम की अफवाह पर पुलिस की दौड़ें लग गईं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बाइक में मौजूद डिवाइस को निकाला गया तो पता चला कि कोई बारूदी मवाद नहीं बल्कि मोटरसाइकिल मालिक ने चोरी से बचाव के लिए डिवाइस लगाई हुई थी। तफसीलात क्या हैं, जुहेब जी एजाज से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जुहेब, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जैसे कि बिल्कुल ये एयरपोर्ट के करीब कार्गो है और इससे बिल्कुल मुतसिल मोटरसाइकिल पार्किंग है, जहां पर एक शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी। उसमें एक बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर एक डिवाइस लगी हुई थी जिसमें लाइट मुसलसल ब्लिंक कर रही थी, जिसकी वजह से उसको मशकूक जानते हुए जो तमाम इदारे हैं उनको तलब कर लिया गया था। और जब बम डिस्पोजल का हमला पहुंचा और उसने उस डिवाइस को नकारा बनाया तो उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना था कि ये कोई बम डिवाइस नहीं थी बल्कि मोटरसाइकिल चोरी से बचने के लिए लगाई गई थी। शहरी भी उस वक्त मौके पर मौजूद था। इसको फिर बाद में थाने ले जाया गया और उसकी मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली थी और पूछताछ का जो सिलसिला है वो ताल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में कोरोना की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र महकमा तालीम सेक्रेटेरिएट में अफसरान और मुलाजमीन को 15 रोज़ की रोटेशन पर ड्यूटी करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अफसर घरों से भी दफातर का काम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध में कोरोना की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र महकमा तालीम सेक्रेटेरिएट में अफसरान और मुलाजमीन को 15 रोज़ की रोटेशन पर ड्यूटी करने का फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची एयरपोर्ट की हुदूद में खाली जगहों पर पार्क्स बनाने का हुक्म दे दिया। एयरपोर्ट की हुदूद में कौन से मकाम पर पार्क तामीर किया जा सकता है, तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। तनवीर बहलीम, बताइएगा इस बारे में कोर्ट के क्या ऑर्डर्स हैं और उसके बाद अब क्या इक़दाम मुतवक्के हैं? देखिए, शहर कराची में जो फैमिली पार्क्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। 2.5 करोड़ की आबादी और गिने चुने हुई फैमिली पार्क्स हैं। उसी बुनियाद को बनाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट मौजूद अदालत की जानिब से सिविल एविएशन हुकाम को हिदायत की गई है कि जो एयरपोर्ट की हुदूद में खाली अराजी है उन पर फैमिली पार्क तामीर किया जाए। इस वक्त हम जीना टर्मिनल के उस मकाम पर मौजूद है। आप शारा फैसल से जीना टर्मिनल के लिए मुड़ते हैं तो एक बड़ा सा पार्क है, कई एकड़ पर ये फैली हुई अराजी है जहाँ पर एक अच्छा फैमिली पार्क बन सकता है। क्योंकि एयरपोर्ट की हुदूद में 3 इलाके आते हैं, शाह फैसल कॉलोनी, मली और इसी तरीके से एयरपोर्ट के पीछे गुलशान जोर की हुदूद लगती है, मगर तीनों इलाकों के अंदर कोई ऐसा बड़ा फैमिली पार्क नहीं है। जब हमने शहरियों से यहाँ पर बात की तो उनका यही कहना था कि अगर जिस मकाम पर हम खड़े हैं अगर फैमिली पार्क बन जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात जारी किए गए आज मौजूद अदालत की जानिब से कि कहा गया है कि बताया जाए कि एयरपोर्ट की हुदूद में कौन से मकाम पर पार्क बनाया जा सकता है। सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से एक बहाना बनाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर पानी का मसला है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि एयरपोर्ट की हुदूद में उनकी नज़र में तो कोई ऐसा पानी का मसला, पानी की फराहमी का कोई मसला नहीं है। तनवीर बहलीन, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अदालत ने कराची के कीमती रिहायशी मंसूबे के खिलाफ बड़ा हुक्म सुना दिया। अदालत ने तिजोरी हाइट्स मंसूबे की तामीरात पर काम रोक दिया और कमिश्नर कराची को तिजोरी हाइट्स तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं, मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताएगा इस सिलसिले में क्या अहकामात हैं अदालत के? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल 13D तिजोरी हाइट्स के बाहर। आज सुबह ही कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक लार्जर बेंच की जानिब से, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, कराची सर्कुलर रेलवे की जो बहाली है उससे मुतलिक ये जो केस है उसकी समाअत के दौरान ये फैसला किया गया है कि गुलशन इकबाल 13D के करीब गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब ये तिजोरी हाइट्स ज़ेर तामीर ये प्रोजेक्ट है, जिसका जो तामीरात है उसको फौरी तौर पे रोकने का हुक्म जारी कर दिया है और जो कमिश्नर कराची हैं उनको फौरी तौर पे इस प्रोजेक्ट को अपनी तहवील में लेने का हुक्म सादिर कर दिया है। यहाँ पे हमारी जो इंतजामिया है, कमर अंसारी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो मनोवन वो अदालत का जो हुक्म है उसका वो मुकम्मल उस पर अमल दरामद करेंगे और वो अपना जो कानूनी हक है उस पर वो अपनी जो कोशिश है वो जारी रखेंगे। यहाँ पे जो इंतजामिया है उनसे हमारी बात हुई तो इनका यही कहना था कि 2700 गज पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है जो गिलानी रेलवे स्टेशन उसके करीब 2700 गज पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है जो गिलानी रेलवे स्टेशन उसके करीब ये मौजूद है। इसमें 170 से ज़ायद जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ पे हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो फ्लैट्स हैं 100% उनकी बुकिंग की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान इस बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में उम्मीदवार बराए नायब सदर मोहम्मद नवाज की अहलियत से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद नवाज को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में उम्मीदवार बराए नायब सदर मोहम्मद नवाज की अहलियत से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील मुनीर पराचा ने बताया कि नायब सदर के उम्मीदवार की सालाना आमदन 2 करोड़ से जायद नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन ने रूल्स की खिलाफ वर्जी न होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार की अहलियत मुअत्तल करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए करार दिया कि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद नवाज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इलेक्शन में जीत की सूरत में वाइस प्रेसिडेंट के अख्तियारात से मुताल्लिक फैसला अदालत करेगी। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात कल 30 दिसंबर को होंगे। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद नवाज का ताल्लुक मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद नवाज पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात में नायब सदर की सीट के उम्मीदवार हैं। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बैंक ऑफ पंजाब ने इस्लामिक बैंकिंग की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर जफर मसूद का कहना था कि पहली सेंचुरी मुकम्मल करने में 8 साल लगे, अगली सेंचुरी में 1 या 2 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं लेंगे। ये जी हमारी 100वीं ब्रांच है और ये मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट भी है और प्राउड मोमेंट भी है कि आज हमने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है इस्लामिक ब्रांचेस की, और ये एक पहली सेंचुरी है। अगली और ये सेंचुरी आते आते हमें तकरीबन कोई 7-8 साल लगे हैं। अगली सेंचुरी जो है वो अगले साल और 2 साल में आनी चाहिए, वो उससे कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ उमर उसकी टीम से। तो इंशाल्लाह ताला another century and then another century in the next 5 years जो हमारा एम है वो ये कि इंशाल्लाह we will be in the top 3 banks of this country। FBR ने एक और बड़ा फैसला कर लिया। कैश पर घर या जायदाद की खरीदारी को रजिस्टर्ड कराना लाजमी करार दे दिया गया है। 20 लाख से ज़ायद कैश पर घर या जायदाद की खरीदो फरोख्त को लाजमी रिपोर्ट करना होगा। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैश पर घर या जायदाद की खरीद फरोख्त को रिपोर्ट कराना लाजमी करार दे दिया है। मुल्क के तमाम डेवलपर्स को करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैश की सूरत में लाजमी करार देना होगा। 20 लाख से जायद कैश पर घर या जायदाद की खरीद फरोख्त को लाजमी रिपोर्ट कराना होगा।
साथ में रियल एस्टेट एजेंट जो भी 20 लाख से ज्यादा कैश में घर या जायदाद की खरीद फरोख्त करता है उसको बताना होगा। और साथ में सबसे अहम बात, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इकदाम की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर इकदाम किए गए हैं एफबीआर की जाने से। रियल एस्टेट सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और जराइम का पैसा जो है कैश की शक्ल में लगाने की मिसालें मौजूद है, जिससे एफबीआर ने यह एक्शन लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी पर वफाक और सिंध में तनाज़ा बरकरार है। वफाक और सिंध पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी और मुलाजमीन की बरतरफी पर भी मुत्तफिक नहीं हो सके। निजकारी कमीशन को सिंध हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास अजीम, अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी, पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बरकरार है, क्योंकि आज सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। लेकिन वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी से मुताल्लिक तमाम उमूर जो हैं वो तय कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में काबीना की निजकारी कमेटी पाकिस्तान स्टील मिल के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की जो है वो मंजूरी दे चुकी है। जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है उसमें उसके TORs में ये बात लिखी गई है कि ये कमेटी पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन और सिंध हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सिलसिले में वफाक से बात करेगी। लेकिन वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान स्टील मिल की जो अराजी है उसको फ़रोख्त नहीं किया जा रहा, इसलिए सिंध हुकूमत के साथ पाकिस्तान स्टील मिल की अराजी के मामले पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। जबकि जहाँ तक पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन का ताल्लुक है, जो कि 4500 से ज़ायद मुलाजमीन हैं, उनकी बरतरफी से मुताल्लिक भी वफाकी काबीना फैसला कर चुकी है, जो कि वज़ारत सनत और पैदावार की समरी के ऊपर फैसला किया गया था। और पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनको उनके वाजबात की अदायगी भी शुरू कर दी गई है। इसलिए सिंध हुकूमत के साथ पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन और अराजी से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अरनून को दुनिया का महंगा तरीन ऊँट करार दे दिया गया। ऊँट की कीमत 20 करोड़ रियाल से ज्यादा है। किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में अरनून की पहली पोजीशन आई है। अरनून का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। अरनून को दुनिया का महंगा तरीन ऊँट करार दे दिया गया है। ऊँट की कीमत 20 करोड़ रियाल से ज़्यादा है। किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में अरनून की पहली पोजीशन आई है। अरनून का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एयरपोर्ट हमला केस का 6 साल बाद फैसला जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन कलअदम तहरीक तालिबान के सहूलतकारों पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। मुकदमे में नामजद APML सिंध के कन्वीनर सरमद सदीकी समेत 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। और इस बुलेटिन से इतना। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।